बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Muhammad Ehsan, PhD scholar, and today my topic of presentation is on the connectedness of F simplicial complexes. राइटर हैं इसके महमूद, अनवर, बनियामीन और यास्मीन। My supervisor is Dr. Zuhaib Zayed, Department of Mathematics, University of Sargodha, University of Management and Technology, Lahore. Content is abstract, keywords, introduction, definition and examples, and next main results and references. Abstract is, in this paper we introduce the concept of F simplicial complexes by generalizing the term of F graphs. In particular, we discuss the problem of connectedness of pairs F simplicial complexes. Moreover, we gave a complete characterization of connected and disconnected F graphs and gave a classification of all the disconnected F graphs. Keywords are connected simplicial complex, F ideal, F graph, and F facet ideal. Introduction is, it is well known fact that corresponding to the every square free monomial ideal in the ring over the field K, we have two simplicial complexes, namely facet complexes and non-face complex simplicial complex. It is naturally to ask what properties should the ideal I have so that the F factors of these two simplicial complexes coincide. This question was first considered in the reference 1, where the authors called such ideals as F ideals. In reference 1, the authors characterized the F ideals of degree 2. This result was then generalized for unmixed F ideals for degree greater than or equal to 2 in the reference 2. Later on, the notion of F graphs was introduced in reference 9. By definition, a graph G on the n vertices is a F graph if its edge ideal I of G is an F ideal of degree 2. More importantly, the authors gave a construction of Cohen-Macaulay F graph in reference 9. Here are the preliminaries. Simplicial complex, let V consisting of V1, V2 up to Vd be a finite set. A simplicial complex V is a non-empty collection of subsets of V that is closed under subsets, that is such that for all subsets F, G are subset of V. If F contained in G and G belong to delta, then F belong to delta. An element of delta is called a face of simplicial complex. A face of the form singleton vertex Vi is called vertex of simplicial complex. जो सिंगल एलिमेंट होगा मीन्स सिंगल वर्टेक्स होगा वो सिर्फ जो होगा उसका फेस कहलाएगा. अ फेस ऑफ द फॉर्म वी जे एंड वी के, यानी दो वर्ड्स पर मुश्तमिल जो फेस होगा इज कॉल्ड एन एज ऑफ द simplicial complex. A maximal element of simplicial complex with respect to the containment is a facet of delta. जो उसके जो simplicial complex के एलिमेंट में सबसे जो बड़ा एलिमेंट होगा मैक्सिमल वो facet कहलाएगा. A simplicial complex on V is a subset of power set. सबसे जो simplicial complex जो होगा वो उसकी जो पावर सेट होंगे उनमें से कोई एक एलिमेंट होगा. वी डिनोट द डायमेंशन ऑफ फेस F बिलोंग टू सिम्प्लिशियल कम्प्लेक्स बाय डायमेंशन ऑफ F डिफाइंड बाय एज डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू F मैग्नीट्यूड -1, मीन F की जो वैल्यू होगी माइनस में से 1 हमने माइनस कर देना है. वी से डैट delta is a pure simplicial complex of dimension D if all the facets of delta are of dimension D. अगर तमाम जो
फेस हैं उनकी फेसर जो है उनकी अगर डायमेंशन सेम होगी तो वो प्योर सिंपलीशियल कम्प्लेक्स ऑफ डायमेंशन डी कहलाएगा। इसको हम करते हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एवरी ग्राफ विद वर्टेक्स v1 to vd gives rise to the simplicial complex। हर जो ग्राफ है जिसके कुछ ना कुछ वर्टेक्स हों तो वो सिंपलीशियल कम्प्लेक्स को जो है वो जन्म देता है। नेमली द कम्प्लेक्स दैट कंटेनिंग empty set along with the every singleton and every pair vj vk such that vj vk is an edge in G। हर जो सिंगल्टन सेट होगा यानी वर्टेक्स जो होगा खाली उसकी जो डायमेंशन होगी वो ज़ीरो होगी, जबकि जो कोई पेयर होगा वो एक एज बनाएगा। इन अदर वर्ड्स एवरी वर्टेक्स करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट। हर वर्टेक्स जो होगा वो एक पॉइंट होगा। एवरी एज करस्पॉन्डिंग टू द लाइन बिटवीन टू वर्टिसेस। हर दो पॉइंट के दरमियान जो एज बनेगा वो एक लाइन बनेगी, ये एज कहलाएगा। एवरी फेस ऑफ द फॉर्म ट्रिपलेट, जिसमें तीन वर्टिसेस जो मिलकर जो बनाएगा वो एक फेस बनेगा। करस्पॉन्ड्स टू द शेडेड ट्राइंगल विद वर्टिसेस v1 v2 एंड v3। यहाँ डायग्राम में v1 v2 और v2 v5 v4 जो है ये एक शेडेड ट्राइंगल है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर v2 v5 और v4 आना था सर, यहाँ पे v1 और v2 v3 लिख दिया गया गलती से, सॉरी। करस्पॉन्ड्स टू द शेडेड ट्राइंगल विद वर्टिसेस v1 v2 v3 एंड एवरी फेस ऑफ द फॉर्म v1 v2 v3 v4। ये जो है v1 v2 v4 और v3 करस्पॉन्ड्स टू सॉलिड टेट्राहेड्रन विद वर्टिसेस v1 v2 v3 एंड v4। यहाँ पर सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, v1 v5 v4 और v2 आना था सर, ये टेट्राहेड्रन को शो कर रही है ये, जबकि ये जो v2 v5 और v4 जो है ये ट्राइंगल है हमारे पास, जबकि v1 v5 v4 v2 जो है ये एक टेट्राहेड्रन है हमारे पास है। इसको हम और भी एग्जाम्पल से कर सकते हैं। ये हमारे पास दो डायग्राम्स हैं सर, ग्राफ्स हैं। इसमें अगर देखें जो द फर्स्ट वन सिंपलीशियल कंसिस्ट ऑफ एज, ये इसमें एज हमारे पास हैं, ये v1 से v2 तक, v2 से v3 तक, v3 से v4 तक। शेडेड ट्राइंगल, इसमें सिर्फ एक ट्राइंगल है v2 v5 और v4। एंड अनशेडेड ट्राइंगल, ये हमारे पास v2 v3 और v4 जो है ये अनशेडेड ट्राइंगल है। दिस इज द सिंपलीशियल कम्प्लेक्सेस विद द फॉलोइंग फेसेस। जो वर्टिसेस हैं v1 v2 v3 v4 v5 ये सारे ये सिंगलटन आ गए हमारे पास। एजेस क्या बनेंगे हमारे पास v1 v2 v2 v3 v2 v4 v2 v5, ये सारे हमारे पास एजेस हैं। शेडेड ट्राइंगल्स में ये हमारे पास v2 v5 और v4 जो है ये हमारे पास एक ट्राइंगल है शेडेड, जबकि ये जो फेसेट्स हैं v1 v2 ये जो दो वाले हैं लाइनें जो हैं ये सारे हमारे पास फेसेट है, जबकि ये जो ट्राइंगल वाला है ये v2 v3 ये भी हमारे पास फेसेड है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेस है। ये इसमें बड़ा फेस ट्राइंगल है और बाकी जो ये जो है टू वर्ड्स के मिलाने से हमारे पास जो लाइनें बन रही हैं ये सारे हमारे पास फेसेड हैं। ये नेक्स्ट भी इस तरह एग्जाम्पल से साथ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीलिमिनरीज में है सिंपलीशियल कम्प्लेक्स ऑन v वर्टेक्स सेट। द डायमेंशन ऑफ, ये हमारे पास हो चुका है डायमेंशन जैसे हम करते हैं कि अगर हमारे पास ये पहले i की वैल्यू जो है वो 0 1 2 ऑफ डायमेंशन है। लेट f5 डिनोट द नंबर ऑफ i डायमेंशनल फेसेस ऑफ डेल्टा, देन f वेक्टर ऑफ इज द वेक्टर f डेल्टा इज इक्वल टू f0 डेल्टा f1 डेल्टा f डायमेंशन डेल्टा। बाय डेफिनेशन एंड एज वन माइट एक्सपेक्ट वर्टिसेस हैव डायमेंशन 0, edges have dimension 1 and so on, thus dimension of graph is 1 since the facets of delta and its maximal faces, so one compute dimension of simplicial complex as a maximal dimension of facet delta। इसी एग्जांपल पे सर अगर आप देखें जो हमने पहले इसका राइट की है, इसमें अगर आप डायमेंशन ऑफ डेल्टा निकालें तो वो 2 है, और इसकी जो अगर हम f वेक्टर निकालना चाहें तो इसमें f वेक्टर जो होगी वो हम 0 वाली डायमेंशन काउंट करेंगे, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली, क्योंकि हम हमारे मैक्सिमम डायमेंशन 2 है। इफ में 0 वाले जो है हमारे पास वो 1 2 3 4 5 एजेस हैं, तो वो 0 वाले जो वो काउंट करके हमारे पास 5 आ रहे हैं। उसके बाद जो 1 वाले हमारे पास हैं वो है 1 2 3
4, 5 और ये 6 हमारे पास एजेस हैं, उनकी डायमेंशन 1 है तो वो 6 हैं, वन डायमेंशन वाले हमारे पास 6 हैं। जबकि हमारे पास पूरा जो ग्राफ है उसका जो ये हमारे पास ये जो मैक्सिमल है ये हमारे पास चूँकि ट्राइंगल है शेडेड, उसका ये 1 लिखा गया है। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट इसमें जो दूसरी डायग्राम है उसमें जो डायमेंशन है वो 3 है, उसको जब हम 0 वाले 5 एजेस हैं, 5 हैं हमारे पास वर्टिसेस, जबकि 2 वाले जो एजेस हैं वो 8 हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और 3 वाले जो हमारे पास ट्राइंगल्स हमारे पास 3 हैं, ये V1 V5 V4 एक ट्राइंगल हो गई, V3 V2 V4 ये ट्राइंगल हो गई, और इसी तरह ये हमारे पास एक बनती है V2 V3 V4 ये एक हमारे पास ट्राइंगल है। इस तरह V1 V5 और V2 ये एक ट्राइंगल है, V2 V4 और V5 ये एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास हो गई 5। और जो ये टोटली ग्राफ है पीछे हमने बताया कि जो टोटली ग्राफ होगा उसका जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी। ये टोटली ग्राफ है, इसका डायमेंशन ये 1 लिखी गई है हमारे पास। क्लियर सर, थैंक्स। इसमें आ गया कनेक्टेड सिंप्लिशियल कम्प्लेक्स। कनेक्टेड वो होंगे जो आपस में ग्राफ कनेक्टेड होंगे। अ सिंप्लिशियल कम्प्लेक्स इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ एनी ऑफ टू फेसिट्स एफ एंड जी ऑफ डेल्टा देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ फेसिट्स एफ सच दैट दे आर कनेक्टेड। दूसरा है डिसकनेक्टेड, अगर उसमें वो आपस में डिसकनेक्ट होंगे। इसको मैंने ग्राफ सर आपको समझा दिया। ये देखें ये ग्राफ हमारे पास है, ये आपस में ये कनेक्टेड है G1, जबकि जो G2 है ये आपस में ये डिसकनेक्ट है, यहाँ से आपस में कनेक्टेड नहीं है ये। नेक्स्ट है सर्किल एट IBA स्क्वायर फ्री मोनोमियल आइडियल्स इन रिंग K विद इट्स मिनिमल जेनेटिक सिस्टम M1 M2 M0 देन facet complex of I over the vertices noted by delta Fi is a simplicial complex generated by F1 F2 Fr। दूसरा जो है वो नॉन फेस कम्प्लेक्स है स्टेनली रेजनर कम्प्लेक्स ऑफ I डिनोटेड बाई डेल्टा Ni। इन दोनों को आगे सर बयान किया गया है। यहाँ से शुरू हो रही है डेफिनेशन। अ फेसिड आइडियल ऑफ ए सिंप्लिशियल कम्प्लेक्स ऑन द फेस वर्टिसेस V1 V2 Vn इज ए स्क्वायर फ्री मोनोमियल आइडियल इन S such that any square free monomials x1 x2 up to xid is in the minimal generating system of IF if and only if corresponding set V1 V2 Vi1 Vi2 Vid is a facet of delta I। अगर उससे वो उसके बिलोंग करेगा सेट उससे, तो फिर वो जो हमारे पास वो होगा फेस आइडियल। दूसरा इसमें बताया गया है कि अगर जो नॉन फेस आइडियल हो वो तब होगा इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग सेट जो है वो डज नॉट बिलोंग टू द सिंप्लिशियल कम्प्लेक्स। अगर बिलोंग करेगा तो वो फेस आइडियल होगा, अगर वो बिलोंग सिंप्लिशियल से बिलोंग नहीं करेगा तो वो हमारे पास नॉन फेस आइडियल होगा। इसकी एग्जांपल सारा मैंने दी है। ये हमारे पास लेट I1 बी अ स्क्वायर फ्री मोनोमियल आइडियल विद दिस, ये हमारे पास दिया गया x1 x2 x3 x4 x1 x2 x5 x1 x4 x5 x2 x3 x5 ये दिया हमारा दिया गया है। इसका जो फेस आइडियल निकाला गया है वो ये है, जो इससे बिलोंग करते हैं वो x1 V1 V2 V4। दूसरा हमारे पास है सर V1 V2 V5, तीसरा है V1 V4 V5, चौथा है V2 V3 V5, पांचवा है V3 V4 V5। इसका जो दूसरा सर नॉन फेस आइडियल जो होगा वो जो इससे बिलोंग नहीं करते, ये तो हमारे पास जो थे जो बिलोंग करते थे ये तो होगा फेस आइडियल, और जो बिलोंग नहीं करेंगे वो नॉन फेस आइडियल हो जाएंगे। मसलन V2 V3 ये उसमें नहीं है, V1 V3 V4 ये भी उसमें नहीं है सर, V1 V3 V5 ये भी इसमें नहीं है सर, V2 V3 V4 ये भी सर इसमें नहीं है, V2 V4 V5 ये भी इसमें नहीं है। तो ये नॉन फेस आइडियल हो गए और ये जो बिलोंग करते हैं वो फेस आइडियल हो गए। इस तरह दूसरी मैंने एग्जांपल दी है सर। नेक्स्ट है सर स्क्वायर फ्री मोनोमियल इज सेड टू बी एफ आइडियल। अब उस अगला स्टेप है एफ आइडियल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ वी हैव एफ ऑफ डेल्टा एफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ वो फेस आइडियल और वो जो नॉन फेस आइडियल अगर आपस में सर इक्वल, उनकी वेक्टर जो हैं अगर वो इक्वल हो जाएंगे तो वो एफ आइडियल बन जाएंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है सर, इसमें हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया है इसमें जो दिए गए डेल्टा एफ आई 2 में जो है सर ये हमारे पास है 3 वाले जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। इसी तरह नॉन फेस वाले जो हैं सर वो भी 10 नहीं है, 3 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनके एफ वेक्टर जो हैं वो सर दोनों के बराबर हैं, लिहाजा ये एफ आइडियल है।
नेक्स्ट आ रहा है कि सिंपलीशियल कम्प्लेक्स इज सेड टू बी एफ सिंपलीशियल कम्प्लेक्स इफ फेसिट्स आइडियल इज एन एफ आइडियल। अगर अब हमारे पास अगर उस फेसल आइडियल हम काउंट करेंगे, अगर वो इक्वल हुए तो फिर वो एफ आइडियल होगा। ये सर एग्जाम्पल इसमें है, ये इसमें हमारे पास हमने फेस आइडियल लिया है ये, और ये दूसरा हमने लिया है नॉन फेस आइडियल। अब यहाँ पर सिर्फ पिछले क्वेश्चन में था कि सिर्फ हमने लेने एफ आइडियल, इसमें हमारे पास फेसेट है सर, ये मैक्सिमम डायमेंशन वाले हैं और ये 3 वाले हैं ये सारे, और ये 10 हैं जो हमने पीछे काउंट भी किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरी ये जो नॉन फेस आइडियल है सर, इसमें भी ये मैक्सिमल है क्योंकि ये सारे मतलब ट्रायंगल्स वाले हैं सर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों के आपस में इक्वल है। लिहाजा सर ये क्योंकि ये फेसेट आइडियल है तो ये चूँकि एफ आइडियल है, लिहाजा ये फेसेट आइडियल कहला रहे हैं। थैंक्स सर, ये मेरी प्रेजेंटेशन से, थैंक्स अ लॉट।